Assalamualaikum. Good morning. My name is Dr. Ravi. Thank you, Dr. Abu Malik, for the kind introduction. I welcome to all of the audience. I never know a lot of the faces are young, the medical student and postgraduate. Can you raise the hands? Who are the medical students? So can you come closer? That's very easy. I want to make it very interactive section. If you have any concern, question, you can ask me. And how many postgraduate are here? So lift up the big hands. So you are my target list. So stroke, stroke like a heart attack, this is a brain attack. And all over the world, we celebrate the stroke day on this 29th October. And stroke is the leading cause of the nowadays disability and death. So before starting about my talk, I would like to show a brief video of to give the importance of the 60 minutes in the life. Minutes. I think my husband's had a stroke. We're on our way. The ambulance should be with you in about 8 minutes. I'm not feeling well. I'm going to lie down for a while. Stroke patient, ETA 2 minutes. Can we go straight through to radiology? Get in the car. I'm taking you to the hospital. The doctor is waiting at the scanner. Let's go. Once we get there, I'll drop you at reception and park. Mr. Smith, can you tell me how much you weigh? I really hope someone will see us soon. Don't wait. Act fast and give someone a second chance at life. Is life riding a bike with the ones you love? Or developing the patience to sit in a wheelchair? Is life enjoying every moment? Or watching it pass you by? Is life making a speech at your daughter's wedding? Or spending your days trying to learn how to say her name again? Strokes steal lives. Don't let time steal theirs. Make every second count. Pre-notify the hospital. Prep the patient quickly. Check for contraindications. Perform CT scan. Diagnose and treat. 60 minutes equals life. Make every second count. So, once patient reach in the hospital, you have a 60 minutes to do all the process, all the protocols, all you have to follow by step. Okay? So, 60 minutes is very important. Once your patient reach in the hospital, you have to confirm that patient have suffered with a stroke or not. So, topic is acute ischemic stroke. Okay, I do not have any disclosure for this presentation. So, outline of my treatment is about thrombolytic treatment of acute ischemic stroke, focus on the history and then examination and NISH score calculation. And after that, we do some brain imaging. I think next talk is very important to decide about the TPA and the brain imaging. But I will give you a brief idea about what imaging you want to do before proceed with the TPA. And then TPA administration, how you give the TPA and what are the prerequisites for the TPA, indication and contraindication, and after TPA, how will you monitor the patient. So I will focus my guideline is about American Heart Association, American Stroke Association. This is the latest guideline about 2019, update of the 2018 guideline. So, stroke is the leading cause of the death and disability worldwide. About 3.3 million deaths worldwide each year is affected by the stroke. Stroke affects about 16 million people each year. And most of them we can prevent by the secondary prevention, primary prevention, and acute treatment. Recently, a lot of advances in the stroke care. In the UK, someone have an every stroke every 40 seconds, and 1 in 3 are having the recurrent strokes.
So over the past few decades, incidence and prevalence of the stroke is going to decline because of the awareness of the stroke and then prevention and the acute treatment and the post-stroke care like a rehabilitation. As we go in the history of the stroke care, in 1998, the patient who has suffered from the stroke and that get a head CT scan and diagnosed with acute ischemic stroke and that get admitted in the medical ward. And still in the, Karachi, the major tertiary care hospital, government sector, still they are doing like that. Okay, the stroke, बड़ा stroke है, 24 घंटे गुजर चुके हैं, 2 महीने से हुआ है या 2 हफ्ते पहले इसको stroke हुआ है, medicine ward में admit कर दो. So the neurologists and medicine people, they know the importance of the stroke care. Because in the stroke care, it's not just a TPA, it's beyond the TPA, and the risk factor control and post-stroke rehabilitation that make a major change in the life of the patient. So a little bit back on the TPA, how TPA will be approved in the history of the TPA. In the TPA was approved in 1996. Today we are in the 2020, so 24 years, even major hospital doesn't have the TPA facility. Many of the small hospitals in the Karachi who are doing the TPA. So look at the number, 24 years, we are the behind. How many hospitals in Karachi are giving the TPA? 4 or 5. The major hospital, a lot of government sector have a lot of room and the area that we can fulfill with the provide acute care. This is like the same care with acute myocardial infarction. Like a brain attack is like a हार्ट अटैक का सबको पता होता है, लेकिन ब्रेन अटैक का किसी को नहीं पता. वो कभी फेथ हीलर के पास जाते हैं या मेडिसिन वाले के पास आते हैं, लेकिन नाउ वी चेंज द माइंड कि स्ट्रोक इट्स क्यूरेबल, इट्स ट्रीटेबल, एंड विद द टाइम वी कैन समवन चेंज द टोटल लाइफ ऑफ द पेशेंट. So this is an article which was published in 1995 and then in the NAJM 1996 was approved by the TPA within a 3-hour time period window. And look at the number that the placebo and the TPA, the low significance of the improvement in the patient who has received the TPA. The TPA history was started in 1996. This is after some years, 2008, this is a new article was published in NAJM, which shows the TPA can go beyond up to the 4.5 hours. So we can provide the acute treatment in the stroke patient till 4.5 hours. So this is the official approved TPA window. So you look at the number. If we lost the 1 second, you lost the 32,000 neurons. If you lost about 1 stroke patient, 1.2 billion neurons will be lost. How they will be repaired, how will be the recovered. It's not only the rehabilitation and the medical treatment, it's acute treatment. Acute treatment can change the whole life of the patient. So first of all, we have to know what are the stroke symptoms and how will you react. Any patient who have any sudden onset, it's not a gradual. Stroke is a sudden onset. किसी की फेस डेविएशन हो जाए, स्पीच में प्रॉब्लम हो जाए, आर्म एंड लेग वीकनेस हो जाए, तो इसे फास्ट, एफ से फेशियल एसिमेट्री, ए से आर्म एंड लेग वीकनेस, एस से स्पीच, टी से टाइम. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. But now it changed into the B fast. B additional 2 symptom of the stroke, like a B is balance. Some have a balance problem that also indicates some have a stroke. And E is a vision. Vision में sudden onset of vision loss हो जाए. So they are the symptom also represented an acute ischemic stroke. But major is a 4 symptom: facial or arm weakness, leg weakness, and speech problem and time. So this is the target time period that we have to follow once patient reach in ER. Door to doctor within 5 minutes. If you have a patient in ER, within 5 minutes, either neurologist or the trained medical resident, you can receive the patient within 5 minutes. And he have to decide by the basis of history and examination and NIH calculation that he or she needed the TP or not. And then you followed by the CT scan. And then the reading of the CT scan nowadays, you know, the radiologists are available on the WhatsApp as well. This is very easy. If the medical resident or the neurologist resident having difficulty to interpret the CT scan that it shows the acute ischemic sign or not, or is there any intracranial hemorrhage or not, you have to discuss with the radiologist. And the risk of the benefit of the TPA,
discuss the family within 30 to 40 minutes, and the TPA administration within 45 minutes. This is your target. Within 45 minutes, you have to give TPA IV. After, follow all the steps, and then stroke unit admission. So this is the guideline, pre-hospital stroke management system. There's a new recommendation. The most of the 45% of the patient who have to achieve the door to needle time within a goal period. This is your target. You know, if you receive the 10 patients, then 5 patients you have reached all the targeted as written in the protocols. So pre-hospital stroke management and stroke of care. अब हमारे पास देखें ना stroke, as we compare with the developed countries, they have a very separate stroke system, stroke ambulance, stroke pre-fire, notify hospital numbers, call number. They know someone has stroke at home, they call the hospital, they call the ambulance. They have stroke ambulances. They carry the patient and reach the hospital, and then before they reach the hospital, the doctors and the stroke team, they know about that the patient is coming. So they are alert. In Pakistan, we don't have any such kind of facilities. You'd think the patient who have a stroke at home, the ambulance bring earlier, or the caretaker are bring the patient earlier to the hospital. How many of you have idea? हमारे पास अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो एम्बुलेंस हमारे पास जल्दी पहुंचाती है पेशेंट को या केयरटेकर्स? केयरटेकर्स. तो हमारा टारगेट क्या हो जाए? अगर हम एम्बुलेंस के पीछे जाएंगे कि उनको टीच करें, उनको टीच करना है, लेकिन अगर हम अटेंडेंट जो हमारे पास पेशेंट ले आते हैं उनको अगर 2-4 इस चीज़ की काउंसलिंग करते हैं कि इसका टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई पेशेंट 3 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जिससे इनकी लाइफ सेव हो सकती है. जो जिसको प्रॉब्लम हुआ है, डिसेबिलिटी है, उससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो दे डोंट नो बिकॉज अटेंडेंट देन गो बैक टू द सोसाइटीज एंड दे डू योर फैमिली, दे स्प्रेड द मैसेज टू अदर कोलीग, टू अदर फैमिली मेम्बर्स. इन दिस वे वी कैन whole community we can target. Every patient, whether he is fulfilled the TPA window or not, you have to counsel them. अगर 2 दिन के बाद आया है, 24 घंटे के बाद आया है stroke का patient, you have to counsel them. Okay, TPA window is this we have to discuss with you. Always the next time you bring the patient within a time window. So increase utilization of acute stroke therapy, improve outcome through increased awareness of stroke sign and symptom. कि उनके symptom हाँ अपने फैमिली मेंबर पहचान लें कि ये स्ट्रोक के सिम्टम है. मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इमरजेंसी कॉल. हमारे पास कोई 911 का सिस्टम नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में. अगर किसी की जान पहचान वाला किसी हॉस्पिटल में होगा तो उसको कॉल कर देगा मेरे कलीग को या मेरे अपने फैमिली में कोई स्ट्रोक हुआ है, पेशेंट आ रहा है. तो वी हैव आल्सो वर्क ऑन दिस, द एम्बुलेंसेस एंड देन द स्ट्रोक यूनिट हु हैव अ स्पेसिफिक नंबर सो वी कैन स्प्रेड ऑन द पब्लिक. ऑप्टिमाइज द प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रायल. पहले इन्फॉर्म कर दें हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को कोई स्ट्रोक पेशेंट आ रहा है. Establish and continue improve quality of care in stroke center. Ensure the rapid transfer across hospital when necessary. So within 5 minutes, patient in ER, what should we do? How will you say okay, this is a stroke patient or not? So, you know, in my experience, I have take a longer time to establish this patient onset. किनका stroke onset कब हुआ है? Lost non well. कि ये patient बिल्कुल ठीक कितने अर्सा पहले था. कुछ patient रात को सो जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं तो उनको weakness होती है. अब इनका onset कब लिया जाए? जब उठे हैं उस वक्त लिया जाए या जब रात को सोए हैं तो उस वक्त लिया जाए. तो onset या last non well ये बड़ा important है. अब कुछ ऐसे एल्डरली पेशेंट में स्ट्रोक होता है तो उनको पता नहीं होता, रूम में बैठे होते हैं और स्ट्रोक हो गया. अब उसको फैमिली से पूछते हैं कब इनको स्ट्रोक हुआ, दे डोंट नो कि 2 बजे ये खाना खा के टेबल पे उठे थे, फिर रूम में गए थे, 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचे. तो वे यू नो ऑनसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनसेट में अगर आपने प्रॉब्लम कर दिया तो आपका सारा आगे पाथ पे डिस्टर्ब हो जाएगा. बिकॉज स्ट्रोक इज़ अ टाइम. 3 घंटे हमारे पास लास्ट नॉन वेल कि ये बिल्कुल ठीक किस टाइम थे, उसके बाद हमारे पास 3 घंटे हैं जिसमें मैक्सिमम रिकवरी होती है. अगर इन सम केसेस वी कैन गो अप टू द 4.5 आवर्स. तो लास्ट नॉन वेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फैमिली मेंबर हिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंफर्म व्हेन लास्ट नॉन वेल. आप 2-3 फैमिली मेंबर से इंटरप्रेट करें. कोई आपको फैमिली मेंबर एक हिस्ट्री देगा, दूसरा कोई दूसरी हिस्ट्री देगा, देन यू बिगिन कंफ्यूज कि विच वी कॉल इज लास्ट नॉन वेल. So you have to judge by the different questioning in the family history कि ये बिल्कुल ठीक किस टाइम थे, accurate.
to confirm patient history taking within a time window, rule out a stroke mimic differential diagnosis. This is very important for the medical resident कि आपको stroke के differential आने चाहिए कि stroke और किन symptom के साथ present कर सकता है या stroke के differential diagnosis क्या हो सकते हैं. You have very short time. While taking history, you instruct your stroke trained staff to monitor vital and get IV cannula and the blood sample for the labs. आपने patient receive किया, आपने उसी फैमिली से या पेशेंट हिस्ट्री लेना शुरू की. आपके पास 2 नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए जो स्ट्रोक पेशेंट को डील करने की सलाहियत रखते हों या उनको पता हो कि स्ट्रोक पेशेंट को एक्यूट में कैसे डील किया जाए. उनको ये इंस्ट्रक्ट कर दें कि इनके वाइटल चेक कर लें और दूसरे तरफ स्टाफ को या कोई अगर लैब टेक्नीशियन है तो उनको ये कहें कि इनके ब्लड सैम्पलिंग जल्दी करें. ब्लड सैम्पलिंग तो हमने भेजनी होती है ना. तो वाई शुड नॉट वी कीप 3 थिंग्स इन द फर्स्ट 5 मिनट्स. टेकिंग हिस्ट्री टू नो द लास्ट नॉन वेल कब तक है, वो बिल्कुल वो ठीक कब तक थे, उसके बाद कब इनके सिम्टम ऑनसेट हुए हैं, उसके बाद आपके वाइटल साइन आपके आ जाएंगे और ब्लड टेस्ट आपने भेज दिए होंगे. और मैं इनकी इंपॉर्टेंस आप आगे जाके बताऊंगा कि ब्लड सैम्पलिंग अगर 5 मिनट में आप कर लेते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो आपने ब्लड सैंपल ये भेजने, आपने ग्लूकोज चेक करना है, CBC, इलेक्ट्रोलाइट, रीनल फंक्शन, INR और ट्रोपोनिन इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड अवॉइड डिले इन द ट्रीटमेंट. सो दीज आर द स्ट्रोक मिमिक सिम्टम्स कि आपको ये करना है कि पेशेंट को सीजर तो नहीं हुआ, उसके बाद टोट पैरालाइज हो गया और ब्रेन ट्यूमर जिसमें कोई हेमरेज कन्वर्जन हो गई या हेमरेज हो गई या मास एडिमा हो गया तो भी हेमीप्लेजिक के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. डीमालिनेटिंग डिसऑर्डर लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, बेल्स पैल्सी को भी अभी तक कुछ लोग एज ए स्ट्रोक काउंट करते हैं. मैंने अपने खुद सी OPDs में पर्चियाँ देखी हैं, रेजिडेंट मेडिकल के और न्यूरोलॉजी के बेल्स पैल्सी को स्ट्रोक लेबल कर रहे हैं और उसको आप एस्कार्ड चल रही है, सब चीज़ें चले. यू नो योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज ऑफ द न्यूरोलॉजी और द मेडिकल. ऑलवेज फोकस ऑन योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड देन यू नो द व्हाट wrong with the patient, either the ischemic stroke or the Bell's palsy. Infectious condition and the most common hypoglycemia. We are the very hurry in dealing with the stroke patient, we forget about to check the glucose. Lot of patients I see in my career, patient who have a hypoglycemia present with the drowsiness and present with the dysphagia, difficulty in speaking, and he is unable to moving any side of the body. So hypoglycemia is very important. First thing you do in the ER within 5 minutes, history and sugar check. And other this cardiology condition, psychiatric condition, conversion disorder can present with like a stroke symptom. Young patient who have present with one side is cannot move one side, but they are very conscious, they responded. You have to differentiate it. Either is conversion or there is ischemic stroke. Sometime benign proximal positional vertigo, vestibuloneuritis and metabolic conditions. So TPA indication within 3-hour time period window, patient who have a diagnosis with a stroke and have a neurological deficit, and time of onset should be considered less than 3 hours before the beginning of the treatment, and age is more than 18 or 18 or older. So these are the contraindication. You know TPA. तो सबसे ज़्यादा एक contraindication कोई रेजिडेंट बता दे मुझे. TPA की contraindication क्या है? कोई एक बता दे. हेमरेजिक स्ट्रोक. ठीक है, तो हेमरेजिक स्ट्रोक आपको कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री में तो आपको नहीं पता चलेगा. हेमरेजिक स्ट्रोक पेशेंट एंड इस्कीमिक स्ट्रोक पेशेंट CT स्कैन में पता चलेगा. इसके अलावा कोई और कंट्राइंडिकेशन याद हो? ठीक है, और वेरी गुड. कोई ब्लड थिनर पे तो नहीं है, वॉरफेरिन, ज़राल्टो पे तो नहीं है. उसका भी क्राइटेरिया है कि कितना पहले वॉरफेरिन लिए, लास्ट डोज कब ली है या ज़राल्टो कब ली है. ठीक है, तो ब्लड थिनर्स, क्योंकि ये आपको याद करनी है, टिप्स से आपको होनी चाहिए. किसी पेशेंट को पास्ट में हेमरेज हुआ हो या कोई सीवियर हेड ट्रॉमा हो या कोई GI या यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई सर्जरी हुई हो रिसेंट 2-3 वीक्स में, जहाँ उनको कोई मेटाबॉलिक या रीनल फंक्शन डिरेंज हो, उससे क्या होता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन होते हैं, ब्लडिंग टेंडेंसी बढ़ती है, मेटाबॉलिक चीज़ें. और इसके अलावा कोई GI या यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो, या कोई पेशेंट वॉरफेरिन पे हो या हेपरिन पे हो या नोएक एंड ओरल एंटीकोगुलेशन पे हो, जैसे एपिक्सापेन है, रिवारोक्सापेन है, ये सब चीज़ें हैं. वन बाय वन वी कैन डिस्कस हियर. माइल्ड नॉन डिसेबलिंग स्ट्रोक, दिस इज अ डिबेटेबल थिंग कि माइल्ड नॉन डिसेबलिंग स्ट्रोक किसको कहते हैं. NICE स्कोर 0 to 4 और 0 to 5 इज वी कंसिडर एज अ माइल्ड स्ट्रोक.
अब इस पेशेंट में किसी में सिर्फ स्पीच अफेक्टेड है, ऑल अदर सिम्टम और नॉर्मल, थोड़ी फेशियल एसिमेट्री है एंड इसका NICS स्कोर 4 बन रहा है, तो what should we do? Should we give TPA or not? But the guideline says you cannot give TPA because it's non-disabling symptom. अब इसी तरह एक दूसरा पेशेंट है जिनकी माइल्ड स्पीच अफेक्टेड है और लेकिन उसका हैंड वीक है, उसका भी NICS 4 हो रहा है, तो अब हैंड वीक है तो डिसेबलिंग सिम्टम में आता है, तो डिसेबलिंग सिम्टम इवन द NICS स्कोर लो यू कैन कंसिडर एज अ TPA. Non-disabling symptom, mild NICS score elevation, you can not give the TPA. एंड CT स्कैन यू विल से कि उस पर कोई ब्लीड आ जाए, ICH की हिस्ट्री हो और इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ हो 3 मंथ के अंदर. अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है 3 मंथ के अंदर, उसको आप TPA नहीं देते. क्यों नहीं दे सकते उसको TPA? हेमरेजिक एनोजन, क्योंकि उसमें स्कार होता है पहले ही एक एरिया नेक्रोस हो चुका है, ग्लायोसिस इंसेफेलोमलेशिया हो चुका होता है, तो अगर आप TPA देते हैं तो वहाँ की जो वेसल्स है उनमें ब्लीड हो सकता है. सीवियर हेड ट्रॉमा विद इन 3 मंथ, acute head trauma within 2-3 weeks कोई acute head trauma हुआ है, intracranial intraspinal surgery within 3 months, and history of intracranial hemorrhage in the past, किसको subdural हुआ हो, extradural subarachnoid hemorrhage 2 साल पहले हुआ हो, तो you should be very careful. Subarachnoid hemorrhage, GI malignancy, GI bleed, coagulopathy. अब कोगुलोपैथी में आपको स्ट्रोक के पेशेंट में कोई वारफेरिन पे है तो यू शुड चेक द INR एंड द प्लेटलेट्स काउंट. अगर उनके प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख है और INR मोर देन 1.7 है, यू कैन नॉट गिव TPA. कोई पेशेंट वारफेरिन पे उसने पहला लास्ट डोज नहीं लिया, आपने INR चेक किया 1 है, यू कैन गिव TPA बिकॉज INR इज अंडर कंट्रोल. सो INR एंड विद द हिस्ट्री ऑफ oral anticoagulation you should be still considered as a स्ट्रोक कैंडिडेट. और लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आपको प्रीवियस 24 आवर्स में लिया हुआ है तो आप TPA नहीं दे सकते. थ्रोम्बिन इनहिबिटर एंड फैक्टर 10 इनहिबिटर जो रिसेंटली मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, उसमें भी आपको 48 आवर्स का विंडो होता है. अगर 48 आवर्स से पहले लिया हुआ है या 24 आवर्स के अंदर लिया है तो आप रिस्क ना लें, उसको टेंडेंसी टू ब्लीड ज़्यादा हो सकता है. IV एस्प्रिन तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो कंट्राइंडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है. और इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, एओर्टिक आर्च एंड इंट्राएक्सियल इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म. अब ये हार्ट की कोई कंडीशन हम कोई जानता हो तो आप पूछ लें, लेकिन मेजर कंडीशन आप ये माइंड में रखें, इसको कैटेगराइज करें सिंप्लीफाइड. कोई ब्लीड ना हुआ हो पहले, कोई हेड ट्रॉमा ना हो, कोई कहीं GI से या कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट से या किसी भी ऑरिफिस से बॉडी के कहीं ब्लीडिंग ना हो रही हो पहले, कहीं ऐसी कोई टेंडेंसी तो नहीं है कि ब्लडिंग डिसऑर्डर की, ठीक है, हीमोफिलिया या इस तरह की कोई चीज़ें, या कोई ब्लड थिनर पे तो नहीं है. मेजर चीज़ें ये आप रूल आउट कर लें विद इन 5 to 10 मिनट्स इन द हिस्ट्री. अच्छा, अब कुछ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है. अगर 3 घंटे में पेशेंट नहीं आया, 3 से ऑनवर्ड्स है, 3 to 4.5 है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें एक एज मोर देन 80 ईयर्स, इट्स रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन, इट्स नॉट एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन. मोर देन 80 ईयर्स को भी आप TPA दे सकते हैं. in our population, some are good in 80s, some are 80s में उनके कोई ना उनको डायबिटीज होती है ना हाइपरटेंशन होता है, एंड दे आर वेरी वेल मैनेज अप एंड अबाउट हेल्दी, तो you can consider even 4.5 hours. But some adult with more than 80 who have a diabetic, bed bound, hypertension, a lot of medications, so you can avoid in this patient. And someone who have a history of diabetic and prior stroke, अगर हुआ है तो आप extend window में उसको TPA नहीं दे सकते. And severe stroke, NICS score more than 25. And taking oral anticoagulation, अगर इस पॉइंट पे कि कोई भी कौन सी भी एंटीकोगुलेशन ले रहा है, कितना भी INR हो, उनको TPA नहीं देना एक्सटेंडेड विंडो में. 3 घंटे में हम दे सकते हैं, जिससे हम INR और प्लेटलेट्स काउंट चेक कर लें. तो अब हम ये सारी चीज़ें हमें पहले 10 मिनट में करनी होती हैं. अब हमारे अगले 5 मिनट 15 मिनट में हमें क्या करना है, तो उसमें होता है NICS स्कोर कैलकुलेशन, और वो आपको करना है 5 मिनट में. अब ये NICS स्कोर को दिखाने के लिए मुझे 15-20 मिनट की वीडियो चाहिए. अगर मैं आपको ब्रीफली समझा दूं कि NICS को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इज़ वेरी इजी. NICS स्कोर आप देखें, इनका टोटल जो नंबर है 42 स्कोर होता है. अगर आप एक साइड की आर्म का 4 स्कोर है, दूसरी साइड का 4 स्कोर है, और दोनों लेग्स का 4 स्कोर, तो 16th स्कोर तो ये हो गया आपका कि आप उनको कहें कि लिफ्ट अप दिस आर्म,
अगर वो आर्म आपके 10 सेकंड तक लिफ्ट कर लेता है तो इट मीन्स इस पावर 5/5, इसमें नो वीकनेस। अगर आपने लिफ्ट की और थोड़ा सा इसे ड्रिफ्ट हो रहा है, दिस इज ड्रिफ्ट, प्रोनेटर ड्रिफ्ट, तो इट्स इंडिकेट दैट समथिंग रॉन्ग विद दिस आर्म, तो उसका फिर आप 3 स्कोर देते हैं। अगर वो हिट कर लेता है सरफेस पे फिर 2, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं है 1 और 0। इस तरह आप इसको कैटेगराइज करते हो पावर के हिसाब से। अब आपने दोनों आर्म्स उठा लिए हैं, ठीक है, विद इन सेकंड, और दोनों में से कोई एक यहाँ डाउन जा रही है, तो इट मीन्स आपको पता चल गया लेफ्ट साइड की वीकनेस है। तो इसका पूरा वीडियो है और इसका सर्टिफिकेशन ऑनलाइन होती है। मैंने अभी डिस्कस कर रहा था जो मेडिसिन के सीनियर CPSP में है और न्यूरोलॉजी की, हम मेडिकल रेजिडेंट का NIC स्कोर कैलकुलेशन का सर्टिफिकेट करें कि हर NIC स्कोर जो मेडिकल रेजिडेंट आता है उनको NIC स्कोर का सर्टिफिकेट हो, जैसे आपके अदर वर्कशॉप होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हमारे हैं कि उनको हम ये सिखाएं। अब किसी पेशेंट है, आप उनसे बात कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं, आपको पता चलेगा उसकी स्पीच कैसी है, आइदर एफेजिक है या डिसआर्थरी है, आपके उसके 3 स्कोर हो गए, 6 स्कोर तो आपके ये हो गया। आप उनको कहेंगे स्माइल करें या टीच क्लेंच करें, आपको पता चलेगा फेशियल एसिमेट्री है, 3 स्कोर उसका हो गया, 9 स्कोर ये हो गए, 16 स्कोर हो गए, 26 स्कोर तक आप विद इन 1 मिनट पहुँच जाते हो। उनसे सलाम किया, उनसे नाम पूछा, आपने उनका फेशियल के एक्सप्रेशन देखे, आपने टीच क्लेंच किया और आपने कहा कि दोनों हाथ उठाएं, और उसके बाद आपने लेग्स को एलिवेट कराया। हैंड को आपने 10 सेकंड तक ऑब्जर्व करना है, लेग्स को आपको 5 सेकंड तक ऑब्जर्व करना है। उसके बाद लेवल ऑफ कॉन्शियस लेवल अलर्ट हैं कि नहीं है, ड्रॉजी हैं, अनकॉन्शियस हैं या सेमी अनकॉन्शियस है, तो वो पता चल जाता है कि आप सलाम करते हो, रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते। उनकी या तो उसकी एज पूछ लें या उनका कोई ऑनसेट पूछ लें अगर वो इतने अलर्ट हैं तो। ओरिएंटेशन, उसके बाद गेज, आप उसकी एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट चेक करें कि वो पार्शियल गेज पैल्सी है या कंप्लीट गेज पैल्सी, या आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद विजन, अब वो पेशेंट एफेजिक है तो आपको नहीं पता पाएगा विजन, तो आप विजुअल थ्रेट देते हैं कि आंख के आगे आप थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि वो ब्लैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लैंक कर रहा है इट मीन्स ही हैड सम विजन एंड ही नो कि कुछ मुझे आंख में हिट हो रहा है। अगर ब्लैंक नहीं कर रहा, यू थिंक अबाउट कि इस विजन अफेक्टेड एज वेल। तो मोटर फंक्शन, आप ड्रिफ्ट चेक करें, ड्रिफ्ट बिफोर 10 सेकंड, फॉल बिफोर 10 सेकंड, नो एफर्ट्स अगेन ग्रेविटी एंड नो मूवमेंट। तो आप अगर किसी की कोई भी मूवमेंट नहीं है तो आप उसको 4 स्कोर देंगे। इसी तरह लेग में है, लेग को आप 5 सेकंड के लिए एलिवेट करके देखेंगे और 5 सेकंड में वो ड्रिफ्ट कर रहा है तो इट मीन्स वीकनेस है। लिम्ब अटेक्सिया, लिम्ब अटेक्सिया आप जो फिंगर नोज चेक करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज और सेंसरी फंक्शन, उसके बाद आर्टिकुलेशन है और एक्सटेंशन एंड इनअटेंशन है। तो आप इसको समराइज करते हैं तो सबसे पहले आपने सलाम किया, उससे ओरिएंटेशन चेक हो गई, नाम पूछा, उसके बाद आपने उससे बातें 2 की, इनकी ऑनसेट पूछा तो स्पीच आपकी हो गई। उसके बाद फेशियल एसिमेट्री चेक करने के लिए आपने क्लेंच कराया, उसके बाद आर्म और लेग्स आपने एग्जामिनेशन की और सेंसरी और अटेक्सिया। तो इस तरह ये पूरा एनालिसिस को आप हार्डली 5 to 7 मिनट्स में कर लेते हैं। और आजकल तो मोबाइल ऐप्स भी ऐसी आ गई हैं जिसमें आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर है 1 बाय स्टेप, इवन मेडिस्केप पे एनालिसिस कैलकुलेशन का ऑप्शन है। तो और मेडिस्केप में ही आपका इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन TPA का भी ऑप्शन है। तो अलग से इनकी एप्लीकेशन भी आती हैं कि एक्यूट TPA केयर, उसमें आप अगर आप देखें और क्लिक करते जाएं तभी आपका एनालिसिस स्कोर आपके सामने आ जाता है। और ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है। आई विल रिकमेंड कि ऑल मेडिकल रेजिडेंट शुड गो दिस एंड यू कैन बी सर्टिफाइड। दिस इज एडिशनल क्वालिफिकेशन, यू नो, आप कहीं पे भी आप मेडिकल रेजिडेंसी के बाद अप्लाई करते हैं तो आप ये एक्स्ट्रा अपनी उसमें ऐड कर सकते हैं कि आई हैव दिस स्ट्रोक केयर सर्टिफिकेशन। So, अब हमने 15 मिनट तक तो कर ली हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एनालिसिस कैलकुलेशन। नाउ व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है? लाउडली, व्हाई CT स्कैन, व्हाई नॉट MRI? तो इज आल्सो MRI कैन डिफरेंशिएट? हाँ, टाइम is a time, you know, you only need CT scan to give TPA or not MRI. जब MRI में पेशेंट जाते हैं तो 25 मिनट्स 20 मिनट्स लग जाते हैं उसकी स्टडी को, एंड CT स्कैन कितनी देर में होता है? It's just 10 seconds. Once patient is in scanner, just click on the button. 10 सेकंड या 20 सेकंड में आपको CT स्कैन मिल जाता है. It's only time process to shifting the patient in CT scanner. Am I right, sir? Just 10 seconds. Just put on one button and you have the images.
So all patients with suspected ischemic stroke should receive emergency brain imaging on first arrival to the hospital before initiating any specific therapy to treat ischemic stroke. सबसे पहली चीज हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड सीटी स्कैन, दैट्स इट. उसके अलावा आपने कोई ट्रीटमेंट मेडिकली नॉर्मस लाइन राइजे कुछ नहीं लगाना. हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड सीटी स्कैन. Symptoms should be established that brain imaging study can be performed as quickly as possible in patients who may be a candidate for TPA or making thrombectomy. Non-contrast CT scan is only we need it. Some of the center, the hospital where doesn't MRI, doesn't matter. You cannot need MRI for the TPA. Just CT scan. CT scan can cover a lot of things. आज से 20 साल पहले तो हमारे पास CT scan ही था ना, MRI तो नहीं था. उस वक्त भी पेशेंट ट्रीट होते थे. हमारे पास CT scan है all over the world, even not speaking about Pakistan, all over the world. Stroke patient only CT. I have before I went here, one of my colleagues was saying we don't have an MRI, we cannot give TPA. I go, why we cannot give TPA? TPA doesn't require MRI machine. हमें MRI की कोई नीड नहीं है. अगर आपके पास CT scan है, well enough, you can give TPA. Okay? So non-contrast CT scan, MRI is effective to exclude ICH before IVL, but this is non-recommended. Skyland says non-recommended, only CT scan. CTA, CT perfusion, MRA with diffusion magnetic imaging and DWI, MRI, ये चीज़ें हमें ज़रूरत होती है जब आप इंटरवेंशन करने जाएं, थ्रोम्बेक्टोमी पे जाएं, रीपरफ्यूजन पे जाएं. TPA के लिए आप CT scan. So this is a CT scan. अब इसमें कोई abnormality है? CT scan तो आपको इस तरह ही दिखाई देता है. तो इसके लिए अब नेक्स्ट टॉक है, मैं उनके ऊपर हैंडओवर करूंगा कि हाउ टू इंटरप्रेट CT scan बिफोर TPA. So without in-house imaging interpretation expertise, टेली रेडियोलॉजी. आजकल टेली रेडियोलॉजी है. आपने CT scan किया, आपने व्हाट्सएप बनाया, आपने अपने रेडियोलॉजिस्ट को इन हॉस्पिटल भेज दिया. उनको कॉल कर दें, पेशेंट मूव नाउ में सर एक TPA पेशेंट है, CT scan है, आई विल सेंड यू CT scan इतना 5 मिनट. आप उनको लाइन अप कर लें. जैसे CT scan हो जाए, यू कैन इंटरप्रेट योरसेल्फ, you can discuss with your senior neurologist who are working in the hospital, you can discuss with the radiologist to be on the make sure case not having any contraindication the CT scan before giving the TPA. So अब 25 मिनट्स तक हमारी यहाँ तक पहुँचा, मैं ये 25 मिनट्स तक करने. अब नेक्स्ट क्या है आफ्टर CT scan? So discuss your CT scan with radiologist or onco-neurologist. Inpatient have no contraindication finding a CT, then go for TPA. Get consent form from family, explain the risk and benefit to TPA, only standard of care in acute stroke care. अब यहाँ पे देखें 30 मिनट हो गए. हमारे पास CBC, रीनल वर्कअप एंड लिवर वर्कअप कितनी देर में आता है इमरजेंसी में? 30 मिनट्स, 45 मिनट्स में अगर आप इमरजेंसी में करें तो ठीक है. और अब आपको पता चलेगा जब आपने 5 मिनट्स के टाइम पे आपने जो ब्लड सैंपल भेजे थे, अब उनकी आपको यहाँ पे नीड हो रही है. ठीक है, अगर वहाँ पे आपने मिस कर दिया भेजना, तो अब आप सोच रहे हैं यार इसको ये तो TPA कैंडिडेट बन रहा है, हमने ब्लड सैंपल तो भेजे नहीं. यू आर नाउ वेस्ट द टाइम, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. यू नो फर्स्ट 5 मिनट्स में आप भेज दें, तो आप वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करें. अब आप TPA का डिसीजन लेने जा रहे हैं, उससे पहले मेक श्योर अगर वो उसको डिस्फेजिया है, लार्ज रेडिटी स्ट्रोक है, यू पुट एन NG ट्यूब, बिकॉज आफ्टर TPA infusion you cannot put NG tube, it can create trauma and can bleed. So you pass NG tube and catheterize before start of the TPA and 2 IV cannula. After TPA you forget to pass NG tube, never attempt, wait for 24 hours. ठीक है, मॉनिटर करें शुगर लेवल, उस तरह IV फ्लूइड्स देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन उसके बाद आप NG tube और फोलिस कैथेटर नहीं कर सकते. बिफोर स्टार्ट यहाँ पे अगेन मैंने ये लाइन इसलिए ऐड की है, कभी कभी मिस हो जाती है. ड्रग हिस्ट्री फैमिली को पता नहीं होती, उसका कोई एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल ले आते हैं, उसकी ड्रग हिस्ट्री को पता ही नहीं होती है. तो जब आप 30 मिनट होते हैं तो हमको कहेंगे आप ड्रग हिस्ट्री लाएं हमें. तो बिफोर TPA गिवन आप उससे पहले भी आप फिर कंफर्म कर लें कि वारफेरिन पे या ज़राल्टो या एक्सेप्ट पे तो नहीं है. दिस इज अ कंसेंट फॉर्म वी आर यूज इन साउथ सिटी. दिस इज माई ऑन यू नो आई कैन, ये मैंने अपने खुद से बनाया है. इसमें हमने ये इंडिकेट किया है कि TPA इज ओनली acute care treatment in 3 hour time window, in some cases 4.5 window. What the advantage? आपसे फैमिली पूछेगी आप ये दवाई दे रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इनका फ़ायदा फ़ौरन नहीं होता. इनका जो फ़ायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, वो 3 महीने के अंदर होता है. अगर हम उन पेशेंटों में TPA देते हैं जिनमें 3 महीने के अंदर क्या फ़ायदा होता है, और जो पेशेंट जिनको नहीं दिया जाए उसमें क्या फ़ायदा होता है, तो ये आप इस तरह बताते हैं. जिन पेशेंट को TPA मिलता है उसमें 30%
ठीक है, पेशेंट फुली रिकवर करते हैं जिस तरह पहले थे। 70% स्टिल हैव सम डिसेबिलिटी, तो 30% को हम सेव कर रहे हैं टीपीए देके। अब ये नंबर काफ़ी आगे जा चुका है, लेकिन जो गाइडलाइन अभी तक रिकमेंडेशन है वो 30% है। रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग कितना होता है? अगर आप किसी को टीपीए दे रहे हो तो रिस्क ऑफ ब्लीड कितना कर रहे हो? 6%। अगर आप किसी 100 को दे रहे हो तो उसमें 6% लोगों को ब्लीड भी कर सकता है। इवन यू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल, स्टिल देयर चांसेस ऑफ 6% हैमरेज। यू हैव टू एक्सप्लेन द फैमिली। If patient are represented not available for consent, ऐसा हुआ है हमारे सीनियर्स के साथ, कोई ऐसे किसी एक डॉक्टर को ड्यूरिंग प्रोसीजर स्ट्रोक हो गया, अब ना वो खुद बोल सकता है ना उनके फैमिली मेम्बर, कंसेंट किससे ली जाए? तो 2 कंसल्टेंट उस वक्त डिसाइड करेंगे रिस्क और बेनिफिट देके, और वो डिसाइड करेंगे टीपीए चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो कंसेंट फॉर्म पे साइन करें तो आप टीपीए दे सकते हैं। अब आपने कंसेंट ले ली, सीटी देख लिया, हिस्ट्री देख ली, एनएसएस देख लिया और हिस्ट्री ले ली, अब आपने टीपीए देने जाना है। तो अब आप सबसे पहले आप देखेंगे एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एबीसी, उसकी सैचुरेशन कितनी है। अगर 95 से ऊपर है तो यू कैन नॉट गिव ऑक्सीजन, 94 से बिलो है तो यू कैन गिव ऑक्सीजन। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टारगेट। ब्लड प्रेशर शुड बी इन acute stroke patient लेस देन 185/110, उससे नीचे हो। कोई रीडिंग अगर इनसे ऊपर है, यू हैव टू गिव एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एंड वेट फॉर फ्यू मिनट्स, 5-10 मिनट्स। अब वो उससे कम आ जाते हैं तो आप टीपीए दे सकते हैं। ऐसा नहीं किसी पेशेंट को 200 ब्लड प्रेशर है और 120 डायस्टोलिक आ रहा है, यू कैन नॉट गिव टीपीए, आपने एक्सक्लूड कर दिया। नहीं, आप उनको आईवी मेडिकेशन दोगे अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट, या लेबिटिलोल दे दो, निकार्डिपिन दे दो, हाइड्रोलाजीन दे दो। यू कैन वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। यू शुड बी ब्रिंग द ब्लड प्रेशर टारगेटेड बिलो द लेवल 185/110। So this is the management of the patient of hypertension during the stroke. आप लेबिटिलोल दे सकते हो, निकार्डिपिन, क्लेविटिपाइन एंड अदर, हाइड्रोलाजीन भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है हाइड्रोलाजीन। अब ये सारा क्राइटेरिया कि आपने ब्लड प्रेशर इससे लेवल से कम रखना है, ओके, और एवरी 50 मिनट आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना है। टेम्परेचर, अगर किसी को टेम्परेचर है तो आप उनको पैरास्टामोल दे के यूथर्मिक कर दें, नॉर्मल 37 पे ला दें तो फिर आप देते हैं। हाइपरथर्मिया कैन वर्स द आउटकम ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट। इसी तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर किसी की 300-400 में शुगर जा रही है तो इट शुड बी बिटवीन 140 to 180, लेस देन 200 शुगर, आप ह्यूमरिन आर दे दें। तो अब आपने ब्लड प्रेशर, वाइटल, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब कुछ कर लिया। अब आप आते हैं टीपीए डोज पे। टीपीए का डोज कितना होना चाहिए? 0.9, इंटरनेशनल रिकमेंडेड डोज है 0.9 मिलीग्राम पर केजी, बट हम एशियन पॉपुलेशन में 0.6 देते हैं, बिकॉज एशियन पॉपुलेशन हैव एन चांसेस ऑफ द ब्लीडिंग मोर। अभी मैंने रिसेंटली 2 हफ्ते पहले टीपीए दिया था, वो न्यूरोसर्जन के फादर थे। अब वी फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स, इवन वी रीच इन हॉस्पिटल विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, ही इज 80 years, ठीक है, हाफ एन आवर, 3 hour टाइम पीरियड विंडो, वी गिव द टीपीए विद 0.6, okay, then after TPA we get a CT scan, it's normal, but next 24 hours, the next day morning his GCs were dropped, gas were deviated to opposite side, you know, you think about something wrong with the brain. We get the CT scan and he's hemorrhage out. You know, it's very important to follow all the protocols. If you miss any protocol, you can bleed out. Okay, so we give 0.6 still now. Aga Khan was using 0.6 and we are using 0.6, but some of the good candidates who are the young, 40, 50, and there is no any contraindication, and he's present within a 1 hour window, so we can go for up to 0.9. Okay, so this we use 0.6 to 0.9. It's a variable dose, but officially in Pakistan we are using 0.6. Shifa International is using 0.9. Islamabad. So ये एक वीडियो है, आपको पता चले कि रेजिडेंट को टीपीए मिक्स कैसे करना है। सेकंड वीडियो अगर ऑन कर दें, आपके टीपीए बॉक्स में 2 चीज़ें आती है, एक पाउडर आता है, एक वाटर आता है। आपको कोई भी अदर से नॉर्मल स्लाइन या इन्फ्यूजन चैम्बर में लिक्विड नहीं चाहिए, उसका प्री फिल्ड लिक्विड आता है। सेकंड नीचे हाँ ये वाली। This is a quick tutorial on how to mix TPA for acute ischemic stroke. The alteplase or TPA is found in the medical Pyxis system in the emergency room. When you open up the package, there will be 3 items inside. Number 1 is the sterile water bottle.
seen in the red top. Number 2 is the TPA seen in the blue top. The last item is the dual-headed spike shown here. Notice that the TPA is in powdered form. It will have to be dissolved before use. This is the dual-headed spike shown here. The first step is to take the sterile water bottle and spike the top with the dual-headed spike. The next step is to take the TPA bottle, turn it upside down, and insert it into the other end of the spike shown here. Now you have a 2-bottle complex. You will need to then invert the bottle so that the water drains into the powdered TPA bottle. This process takes about 45 seconds to complete. Once that's finished, you can then remove the spike in the empty sterile water bottle. Now you have your autoplace. Gently swirl this bottle, and you're ready to use the bottle. So, in summary, open the package, spike the sterile water bottle, invert the TPA bottle, and insert this TPA bottle into the other end of the spike, then invert both bottles to allow the water to drain into the TPA bottle. After that's finished, remove the spike and the empty water bottle. Then gently swirl the TPA bottle with the water in it. Presentation. So, after this TPA, you start with the general principle. Physician prepared and you start the TPA. You note down the time of onset कि आपने किस time start किया TPA, and then you check the vital sign every 15 minutes for the first 2 hours, and then every 30 minutes for 6 hours, and then every 2 hourly. TPA दे दिया आपने, हर 15 मिनट में vital GCS और NICS calculate करना है. Okay, continue cardiac monitoring, bed rest for 24 hours after TPA infusion, and आपने bleeding sites देखनी है. कोई NG tube में blood तो नहीं आ रहा, cannula से ooze तो नहीं कर रहा, urinary catheter में तो blood नहीं आ रहा, ठीक है, और oral cavity को भी observe करना होता है. So what are the possible side effects of the TPA? First thing is that अब आपने जिस NICS स्कोर पे और जिस GCS पे TPA दिया है वो डॉक्यूमेंट कर लें. अगर उसके बाद आपने TPA स्टार्ट करने के बाद एनी पॉइंट आपको ये लगे कि उन्होंने GCS ड्रॉप किया है, स्टॉप द TPA, ठीक है, एंड गेट ब्रिंग द रिपीट द CT स्कैन अगेन, ठीक है. अगर वो उसी एग्जाम पे हैं और आपने हर 15 मिनट में वाइटल चेक करने हैं, GCS चेक करना है, NICS को चेक करना है. अगर किसी पॉइंट में आपको लगे कि उसने सीवियर हेडेक की कंप्लेंट की है, वॉमिटिंग की है, हाइपरटेंशन या ड्रॉप GCS किया है, तो स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड कंसीडर टू रिपीट CT स्कैन प्लान. ब्लीडिंग फ्रॉम एनीवेयर बॉडी, तो आप फिर अगर उसने कोई ब्लीडिंग की है तो यू कैन अरेंज द FFPs and prothrombin concentration complex, aminocapric acid. This is after the complications of the TPA. You should know about that. And angioedema. Sometimes the tongue and oral cavity will swell up. This is also 1 to 2% of the cases patient can develop this side effect. And this is very easily managed. We give Hydrocort, you give Avil, and you can give the Zantac. Okay? So stop, this is the protocol. Stop the infusion, check the CBC, INR and fibrinogen level and cross match. Emergency CT scan repeat करें. Crab precipitate mostly हमारे पास यहाँ available नहीं होता, किन किन बड़ी हॉस्पिटल में हो, लेकिन आप FFPs भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसमीन भी यूज़ कर सकते हैं. ट्रांसमिक एसिड, हेमेटोलॉजी और न्यूरोसर्जरी को ऑन बोर्ड ले लें. सपोर्टिव केयर, BP मैनेजमेंट करें, ICP, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, मीन आर्टियल प्रेशर. एंड दिस इज एंजियोएडिमा. अगर आपका ओरल कैविटी और टंग एडिमा हो गया है आफ्टर द TPA, यू गिव हाइड्रोकोर्टिसोन एंड देन एविल एंड देन रेनिटिडिन. आफ्टर द TPA एंड देयर इज नो एनी कंट्राइंडिकेशन, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, तो पेशेंट शुड एडमिट इन स्ट्रोक यूनिट. Dysphagia skin will be by speech therapy in after 24 hours. No antiplatelets. 24 घंटे तक आपने कोई भी एंटीप्लेटलेट्स नहीं देनी, ना एस्प्रिन ना क्लोपिडोग्रल. फॉलोअप इमेजिंग आप 24 आवर के बाद करें. आप इस यहाँ पे आपकी चॉइस है, CT स्कैन रिपीट करें या MRI करें, ठीक है. बोथ आर इंडिकेटेड. मोस्टली वी वांट गो फॉर MRI बिकॉज गिव द डिटेल पिक्चर ऑफ द ब्रेन.
उसके बाद आप इनका वर्कअप लाइनअप कर दें, इको, कैरोटिड डॉपलर, फास्टी लिपिड प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन A1C, अगर लेस देन 45 ईयर्स से बिलो है तो यंग स्ट्रोक वर्कअप, डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस आप दे सकते हैं और रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर दें। तो these are the number, look at the number. If you give any patient with a 90 minutes TPA, number need to treat is 4 to 5. अगर 5 बंदों में किसी एक को दे रहे हैं तो उसमें आप एक की लाइफ सेव कर रहे हैं। If you go about 3 hours is a 9, 4.5 hours 14. जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा चांसेस ऑफ रिकवरी कम होती जाएगी। अब यहाँ तक तो TPA था, ठीक है। अब आते हैं इंटरवेंशन पे। आई विल गिव जस्ट 5 मिनट्स मोर टू गिव एन आइडिया अबाउट अब इंटरवेंशन दुनिया कहाँ जा रही है, कि किस पॉइंट पे जा रही है आफ्टर टीपीए। टीपीए इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एक्यूट स्ट्रोक ट्रीटमेंट। हम अभी तक टीपीए भी नहीं पहुँचे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि पाकिस्तान में टीपीए बहुत सारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं है। अभी ड्राफ्ट ने अप्रूव किया है कि टीपीए इज़ लाइसेंस ड्रग फॉर द पाकिस्तान 24 ईयर्स के बाद। तो उसके बाद किसी का लार्ज वेसल स्ट्रोक है, M1 मतलब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी या बेजलर आर्टरी या एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसमें अगर कोई स्ट्रोक है तो आप थ्रोम्बेक्टोमी पे जाते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन आप मर्सी रिट्रीवर डिवाइस है और प्लम्बरा डिवाइस है। सेकंड जनरेशन सोलिटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है नाउअडेज। दीज आर द ट्रायल, MR क्लीन, एक्सटेंडेड IA, रिवैस, एस्केप, स्विफ्ट प्राइम। इन सब इंटरवल पे जो रिसर्च आई है इन्हें प्रूव किया कि इंटरवेंशन हैव अ बेटर आउटकम। ये सारी इनकी डिटेल हैं। ऑल आर यू से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बेनिफिट। सब ने ये प्रूव किया कि अगर आप कोई इंटरवेंशन पे जाते हैं तो आप पेशेंट की रिहेबिलिटेशन या उसकी डिसेबिलिटी में काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है। अब देखें एंडोवास्कुलर 33, 44, 53, 60, 71, तो हर ट्रायल पिछले ट्रायल से बेहतर रिजल्ट शो किए हैं। इट मीन्स वी हैव अ लार्ज टाइम विंडो। अब उसके बाद तो गेम ही चेंज हो गई जब डॉन ट्रायल आया। डॉन ट्रायल शोज कि आप 24 आवर्स तक पेशेंट को इंटरवेंशन दे सकते हैं। समवन हैव अ स्ट्रोक लार्ज वेसल 24 आवर्स, तो इसमें आप 6 to 24 आवर्स और इस तरह इन ग्रुप में डिवाइड किया गया एनालिसिस को। इतना इनफाक्ट वॉल्यूम ये CT परफ्यूजन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लुक एट द नंबर, अगर आपने मेडिकल मैनेजमेंट किए तो 20% एंड देन ट्रिवियो डिवाइस यूज़ किए तो 55%। पी वैल्यू सिग्निफिकेंट। अगर 6 से 12 घंटे 4.5 घंटे तो आपने TPA दिया, अगर TPA में नहीं पहुंचा अब स्टिल हैव एन चांस ऑफ द रिकवरी बाय द इंटरवेंशन। उसमें आप एक्यूट इंटरवेंशन पे जाएं और 24 आवर्स पे भी जाते उस वक्त भी आपने देखे 43.1 और दीज आर द रिजल्ट्स। उसके बाद डिफ्यूज ट्रायल विच सपोर्ट द डॉन ट्रायल क्राइटेरिया एंड द रिजल्ट्स। इसमें 6 to 16 आवर्स टाइम पीरियड लिया गया और इसमें भी बेनिफिट हुआ। तो लुक एट, अब यहाँ पे मैं अपनी डिस्कशन स्टॉप करता हूँ। लुक एट देयर कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया 1995 और हम अभी 2018 तक ये है। अगर 2019 और 20 में डॉन ट्रायल और डिफ्यूज ट्रायल आए, इस 24 ईयर्स में हम अभी तक TPA बहुत सारी हॉस्पिटल में नहीं दे पा रहे। TPA के लिए कोई इतनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। CT स्कैन आपके पास है, लैब आपके पास है, आपके पास मेडिकल रेजिडेंट है, आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट है, आपके पास रेडियोलॉजिस्ट है। आप 2 नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन करें, 2 PG को ट्रेन करें और 1-2 RMOs को पर शिफ्ट रखते हैं। कोई भी स्ट्रोक पेशेंट आया आप उनको TPA दे सकते हैं और TPA की कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप किसी हर पेशेंट को नहीं लगा सकते। यू शुड बी वेरी केयरफुल। हमें कॉस्ट भी पेशेंट को बतानी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी एंड पाकिस्तान Society of Neurology, we have some funds that we can give a TPA those hospitals who are initiate to start the stroke unit or the acute treatment. We can provide 1 or 2 vial free of cost. I can assure you, I am a general secretary, we have a fund, we can give the TPA. आप स्टार्ट करें, 1-2 पेशेंट को लगाएं, हम आपको TPA दे रहे हैं। पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी आपको दे रही है, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी आपको देगी। एक स्टार्ट लें, क्योंकि इसके लिए आपके सिर्फ 5 बेड का भी कर लेना कि ये स्ट्रोक वार्ड है या स्ट्रोक यूनिट है, उसमें एक रेजिडेंट को लगा दें, वो अपना मॉर्निंग राउंड करें न्यूरोलॉजिस्ट के साथ। आप ये एनालिसिस का वर्कशॉप कर लें, ठीक है। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आ गया किसी भी टाइम, बहुत सारे हॉस्पिटल की मुझे कॉल आती हैं कि TPA क्या करें, देना है कि नहीं देना, कहाँ मूव करना है। आप दारुल से थे, कोई TPA है, आप नहीं चाहते, आपके सामने आगा खान करीब है, आप वहाँ रिफ़र तो कर सकते हैं ना किसी को एक्यूट। ऐसे नहीं, मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि 3-3 घंटे लाइनअप हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट ये देखें, उसमें कोई देखते नहीं, उसके बाद कहते हैं कि ये तो स्ट्रोक है, आप रिफ़र करो, तो गेम ओवर। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं
और 4 घंटे उनके सिम्टम ऑनसेट से पहले आधा पौना घंटा तो पेशेंट पहुंचने में ही ज़ाया कर देता है। अब बाकी हमारे पास 2-2.5 घंटे हैं, उसमें हमें अपनी एक्सपर्टीज शो करनी है कि हम इसको किस तरह सेव करें। और मोस्टली स्ट्रोक पेशेंट बेचारे एडल्ट लाइफ में होते हैं, वो अपनी फैमिलीज रन कर रहे होते हैं। अब किसी का फादर, किसी का हस्बैंड, और वो एक ही कमाने वाला होता है, अगर वो बेड बाउंड हो जाए तो आप क्या समझते हैं उनके घर किस तरह होगा? क्योंकि स्ट्रोक इज़ नॉट टीपीए कॉस्ट। टीपीए के बाद अगर जो स्ट्रोक की जो टीपीए सपोज करो 1 लाख का है, ठीक है, पूरा केयर, अगर किसी को नहीं मिला टीपीए, उसकी रिहेबिलिटेशन में कितना खर्चा आता है, उसकी बाकी ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आता है, और मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार तो वो 3-4 महीने की फिजियोथेरेपी में लगा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ टीपीए की इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे ना पाकिस्तान में, तो हम कंपनी से इसके ऊपर काफ़ी वो ऑफ ले लेंगे कि हम यूज़ तो करें, अब स्ट्रोक यूनिट तो बनाएं, इनिशिएट तो करें। तो फिजिशियन फोकस ऑन रीजन गाइडलाइन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन केयरफुली, रूल आउट द हिस्ट्री, रिस्क बेनिफिट, डिस्कस द फैमिली, एडमिशन अंडर न्यूरोलॉजिस्ट इन स्ट्रोक यूनिट। दिस इज अ समरी। दिस इज माय स्ट्रोक यूनिट इन साउथ सिटी। हमने 10 बेड का बनाया हुआ है, 6 बेड आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। 1 स्टाफ 1 पेशेंट का रेशो होता है हमारे पास। दिस इज स्ट्रोक पेशेंट, ये हमारी पूरी टीम है। स्ट्रोक नर्स, हेड नर्स, डॉक्टर्स, ये हमारे पास भी ड्यूटी डॉक्टर RMOs हैं। हमारे पास कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है जो हम स्ट्रोक यूनिट रन कर रहे हैं। यही मेडिकल रेजिडेंट इस तरह हमारे पास ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं, RMOs होते हैं, उनको ही हम ट्रेन करते हैं। तो आपको एक टीम चाहिए, और दिस इज माय ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सएप, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। What mean by if you give TPA and you reverse the TPA effect? If the patient is bleeding overly. Okay. So you can, in this situation, you stop the TPA first. Okay, and then you send the cross match and transfuse the fresh frozen plasma FFPs and cryoprecipitate and transamine. You cannot reverse the whole complete effect, but you can minimize the damage of the effects. You can give the cryoprecipitate if you have. You can give the FFPs, you give the transamine, and first thing you stop the TPA. Okay. Assalamu alaikum, sir. Okay, thank you.